to my YouTube channel Physics with Anil Arora. Students, रे ऑप्टिक्स क्लास 12 का टॉपिक है और उसमें आज हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइए सबसे पहले हम इसको डायग्राम से समझेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स, ये देखिए, दिस इज सेपरेटिंग मीडिया एंड दिस लाइन सेपरेट्स denser and rarer medium. denser mu2, rarer का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है mu1। और ये कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जैसा कि हमें पता है, ऑब्जेक्ट से रे जो नॉर्मल टू प्लेन होती है वो सीधी चली जाती है। दूसरी रे, एक रे हमने ये बना दी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और दिस इज रिफ्रैक्टेड रे और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा हूं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस called critical angle, angle of refraction becomes 90 degree. That is, refracted ray becomes perpendicular to normal. This is normal. Students, जैसे जैसे I2 greater than I1, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा हूं, सिमिलरली R2 goes on, angle of reflection goes on increasing, and at particular angle of incidence called critical angle, that is, at particular angle of incidence called critical angle, R is 90 degree. ठीक है, लेकिन अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दूं, if angle of incidence is greater than critical angle, ray is totally reflected in the same medium. Ray is totally reflected in the same medium. This phenomena of reflection of light in same medium is called total internal reflection. Hence, total internal reflection is the phenomena of reflection of light. Phenomena of reflection of light in denser medium. In denser medium, when ray of light travel from denser to rarer medium, provided angle of incidence is greater than critical angle. Students, यहां पर हमने दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़े हैं जिनको हमने ध्यान रखना है, नंबर 1 एंड नंबर 2। मैं अलग से बता देता हूं। स्टूडेंट्स, ये लीजिए नॉर्मल, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे। This is denser.
दिस इज रियर, ठीक है। एंड द इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे and this angle of incidence is equal to critical angle, तो then R is equal to 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी तरह से इसके लिए when angle of incidence is greater than critical angle, then ray is totally reflected in the same medium. This phenomena is called PIR. This phenomena is called PIR. That is reflection of light in denser medium. Reflection of light in denser medium. Reflection of light in denser medium. When ray of light travels from denser to rarer medium, provided angle of incidence is greater than critical angle. स्टूडेंट्स, अब आप समझ रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा हूं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। एंड at a particular angle of incidence called critical angle, R is 90 degree. And if angle of incidence is greater than critical angle, ray is totally reflected in the same medium. This phenomena is called total internal reflection. Students, आइए मैं बताता हूं what are the conditions of total internal reflection. पहली कंडीशन है ray should travel from denser to rarer. और दूसरी कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस should be greater than critical angle in denser medium. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ सेकेंड हम पढ़ेंगे व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। स्टूडेंट्स, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इन denser medium when angle of refraction in rarer medium is 90 degree. That is when C is equal to I, R is equal to 90 degree. When C is equal to I, R is equal to 90 degree. आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, when C is equal to I, R is equal to 90 degree. Now question arises, what is the relation between mu1, mu2 and C? mu1, mu2 and C. Students, using Snell's law, mu2 sin I is equal to mu1 sin R. mu2 sin I is equal to mu1 sin R. When
I is equal to C, R is equal to 90 डिग्री, तो μ2 sin C is equal to μ1 sin 90। तो स्टूडेंट्स ये आ गया मेरे पास μ2 by μ1 is equal to 1 upon sin C, क्योंकि sin 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, sin 90 होता है 1, तो μ2 by μ1 is equal to 1 by sin C। या लिख सकता हूं 1 μ2 is equal to 1 upon sin C। क्लियर हो गया। यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि μ2 जो है हमारे पास μ1 से बड़ा है, और 1 μ2 का मतलब होता है μ2 by μ1, μ2 by μ1। क्लियर है स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ गए। आइए अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेते हैं। स्टूडेंट्स पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर एंड सरफेस इफ अ रे ऑफ लाइट which is inclined in air on a glass surface is deviated through 15 degree when angle of incidence is 45 degree। स्टूडेंट्स आइए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन एक तरह से हमारे पास इस तरह से है, दिस इज नॉर्मल a ray of light which is incident in air on a glass surface is deviated, ये लीजिए this is I is equal to 45 डिग्री, और ये जो डेविएट हुआ है ये कितना डेविएट हुआ, 15 डिग्री डेविएट हो गया, तो इसका मतलब R कितना है हमारे पास 30 डिग्री। स्टूडेंट्स we know that mu is equal to sin I by sin R is equal to 1 upon sin C, 1 upon sin C। क्लियर है। ये रेयर, दिस इज एयर, दिस इज ग्लास, दिस इज रेयर मीडियम μ1 and this is denser medium μ2। क्लियर है। तो 1 μ2 sin I by sin R, 1 μ2 sin I by sin R, μ1 sin I, μ2 sin R। तो स्नेल्स लॉ से sin I by sin R is equal to 1 upon sin C। I हमारे पास है 45, R हमारे पास है 30, 1 upon sin C। यह आ गया हमारे पास 1 by root 2, 1 by 2, 1 upon sin C। अब चेक कर लें स्टूडेंट्स, ये आ गया 2 by root 2 is equal to 1 upon sin C, या फिर sin C is equal to 1 by root 2 sin 45, तो C is equal to हमारे पास क्या आ गया 45। मैंने क्वेश्चन ले लिया, व्हाट इज द, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम having critical angle is equal to 45 डिग्री। स्टूडेंट्स इस केस में हम यूज कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन sin C, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन sin C। मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया है, और ये फॉर्मूला आप मेरे पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो C इज इक्वल टू 3 into 10⁸ V, 1 अपॉन C की जगह 45 डिग्री। स्टूडेंट्स क्लियर है। तो इस तरह से हमारे पास 3 into 10⁸ V
साइन 45 होता है 1/√2, तो ऊपर आकर क्या आ जाएगा √2। तो इस तरह से v इज इक्वल टू आ गया 3/√2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको बताया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल और साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, और कुछ न्यूमेरिकल भी किए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उनके न्यूमेरिकल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इस वीडियो के साथ साथ मेरा अगला वीडियो जरूर देखें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।